Mole of any ideal gas, 1 mole of any ideal gas, 1 mole of any ideal gas at STP, standard temperature pressure condition, 1 mole of any ideal gas at STP, standard temperature pressure condition, 1 mole of any ideal gas at STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है. टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर शुड बी 1 एटमॉस्फेयर. ऑलवेज occupies the same volume. Always occupies the same volume, and that volume is always 22.4 liters. 22.4 लीटर. कोई भी आइडियल गैस, देखो हम लोग गैसियस स्टेट में आगे चल के पढ़ेंगे कि गैसेस को हम लोग 2 तरीके से कंसीडर करते हैं, रियल गैस एंड आइडियल गैस. 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस, रियल गैस नहीं, 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस एट द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑलवेज ऑक्यूपाइज द सेम वॉल्यूम 22.4 लीटर. तो किसी भी गैस का अगर वॉल्यूम 22.4 लीटर अगर आया आइडियल का एसटीपी पे, तो हम लोग उसको 1 मोल बोलेंगे. तो अगर 11.2 लीटर हुआ तो कितना मोल बोलेंगे? हाफ मोल एट एसटीपी. और अगर 44.8 लीटर हुआ तो हम लोग 2 मोल्स. सीधा एक फॉर्मूला हम लोग बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइडियल गैस विल बी ऑलवेज इक्वल टू volume given at STP in liters divided by 22.4. Number of moles of an ideal gas at STP, number of moles of the gas will be always equal to volume given at STP in liters divided by 22.4. Clear? मान लो 100 लीटर गैस लिया गया, 100 लीटर ऑफ अमोनिया गैस टेकन एट एसटीपी, सो 100 डिवाइडेड बाय 22.4 विल गिव यू द नंबर ऑफ मोल्स. क्लियर? तो बेसिकली हम लोग पहले 3 फॉर्मूला पढ़े. पहला फॉर्मूला पार्टिकल दिया हुआ है मोल निकालना, दूसरा फॉर्मूला मास दिया है मोल निकालना, और तीसरा फॉर्मूला अगर गैस के लिए है कि वॉल्यूम दिया हुआ है और उसके बाद फिर मोल निकालना. क्लियर है? सवाल लिखिए. इसी पे बेस्ड हम लोग कुछ सवाल करेंगे. सवाल लिखते चले जाओ, उसके बाद सोल्यूशन लिखना, लगातार सवाल लिखना, नंबरिंग देखे. पहला सवाल, हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 100 AMU of helium? How many atoms are there in 100 AMU of helium? How many atoms are there in 100 AMU of helium? Second question. Calculate the number of oxygen atoms. Calculate the number of oxygen atoms present in 50 gram. 50 gram of CaCO3. Present in 50 gram of CaCO3. Third question. If X gram of capital A contains Y atoms, if X gram of capital A contains Y atoms, how many atoms are present in 2x gram of B if? How many atoms are present in 2x gram of B if atomic weight of A and B are 20 and 40 respectively. If atomic weight of A and B are 20 and 40 respectively. अगला सवाल, calculate the total number of electrons present in 1.6 gram of methane. Calculate the total number of electrons present in 1.6 gram of methane. CH4.
अगला सवाल, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन 44.8 liter of oxygen gas, 44.8 liter of oxygen gas at STP. Calculate the total number of nitrogen atoms. अगला सवाल, calculate the total number of nitrogen atoms and hydrogen atoms. Calculate the total number of nitrogen atoms and hydrogen atoms present in 100 liter of ammonia at STP. Present in 100 liters of ammonia at STP. Next question. How many grams of CaWO4, how many grams of CaWO4 would contain the same mass of tungsten, would contain the same mass of tungsten W, would contain the same mass of tungsten W that is present in 569 gram of, that is present in 569 gram of FeWO4, 569 gram of FeWO4. Atomic weight of W 184. Atomic weight of tungsten W 184. The molecular weight, अगला सवाल, the molecular weight of hemoglobin. The molecular weight of hemoglobin is 65,000, 65000. The molecular weight of hemoglobin is 65,000. Hemoglobin contains 0.35% of iron by mass. Hemoglobin contains 0.35% of iron by mass. 0.35% of iron by mass. How many Fe atoms are there in? How many Fe atoms are there in 1 molecule of hemoglobin? 1 molecule of hemoglobin. अगला सवाल, insulin contains 3.4% by mass sulfur. Insulin contains 3.4% by mass sulfur. Calculate the minimum molecular weight of insulin. कौन सा सवाल? Insulin contains 3.4% by mass sulfur. Calculate the minimum molecular weight of insulin. Calculate the minimum molecular weight of insulin. Last question. Last question लिखो. Nitrogen content in a sample of urea. Nitrogen content in a sample of urea is 42.5%. Nitrogen content in a sample of urea is 42.5%. 42.5% by mass. What is the percent purity of urea in the sample? What is the percent purity of urea in the sample? यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NH2CONH2. What is the percent purity?
ऑफ यूरिया इन द सैंपल। फिर से रिपीट कर रहे, नाइट्रोजन कंटेंट इन अ सैंपल ऑफ यूरिया इज 42.5% बाय मास। व्हाट इज द परसेंट प्योरिटी ऑफ यूरिया इन द सैंपल? यूरिया होता है NH2CO NH2। अब कुछ एटॉमिक वेट लिख लो ऊपर में कहीं। सल्फर 32, आयरन 56, कैल्शियम 40, बस बाकी तो कर ही लोगे, बाकी तो आता है ना एटॉमिक वेट। चलो, सवाल सॉल्व करने के पहले एक चीज देख लो, कॉपी कर लो, उसके बाद सवाल को सॉल्व करना शुरू करना। परसेंट ऑफ एनी एलिमेंट, परसेंट ऑफ एनी एलिमेंट इन अ कंपाउंड, परसेंट ऑफ एनी एलिमेंट इन अ कंपाउंड। जैसे मान लो AXBY एक कंपाउंड है जिसमें A और B एलिमेंट है। सपोज हमसे बोला गया कि परसेंट ऑफ B कितना, परसेंट ऑफ B कितना, तो ऑब्वियसली B का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100, यही तरीका से परसेंट निकालेंगे। खैर, बिल्कुल लॉजिक की तरह समझो। 1 मोल कंसिडर किए, अगर हम 1 मोल अगर कंसिडर कर लिए AXBY, इट विल कंटेन Y मोल ऑफ B एंड X मोल ऑफ A। ये सब पढ़ चुके पिछले क्लास में। 1 मोल AXBY में कितने कितने मोल होंगे? Y मोल ऑफ B होगा और X मोल ऑफ A होगा। इस 1 मोल का टोटल मास कितना होगा? 1 मोल का टोटल मास हमेशा मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो मास अपॉन टोटल मास इनटू 100, सो टोटल मास विल बी मॉलिक्यूलर वेट। और परसेंट ऑफ B निकालना है तो B का मास कितना हो जाएगा? तो Y मोल ऑफ B का टोटल मास कितना होगा? Y इंटू एटॉमिक वेट ऑफ B। समझ में आ रहा है? Y इंटू एटॉमिक वेट ऑफ B, टोटल मास B का निकाल लेना, Y इंटू एटॉमिक वेट ऑफ B, टोटल मास ऑफ B डिवाइडेड बाय टोटल मास मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100। सिमिलरली परसेंट ऑफ A अगर निकालना रहता तो X इंटू एटॉमिक वेट ऑफ A डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100। क्लियर? सपोज हम बोले Mg3N2, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम? मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट 24 होता है, ठीक? टोटल मैग्नीशियम का वेट कितना हो जाएगा? 3 इंटू 24, 3 इंटू 24 डिवाइडेड बाई टोटल मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाइड बाई 100। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू 2 इंटू 14। टोटल नाइट्रोजन कितना है? 2 इंटू 14 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100। क्लियर? जिस तरीके से परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकाला जाता, उसी तरीके से परसेंटेज ऑफ आयंस भी निकाला जाता है। आयंस, जैसे मान लो तुम्हारे सामने हम एक फॉर्मूला लिखे, NH4 होल ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम, पहले देख लो उसके बाद कॉपी कर लेना। अमोनियम सल्फेट एक कंपाउंड है, NH4 होल ट्वाइस SO4। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परसेंटेज, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता? 14, 2 इंटू 14 28 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 8 इंटू 1 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100। परसेंटेज ऑफ सल्फर, सल्फर का एटॉमिक वेट 32, एक ही सल्फर है, 32 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 4 इंटू 16, 64 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100। अगर हम तुमसे बोले परसेंटेज ऑफ अमोनियम आयन, ऐसे भी पूछा जा सकता, किसी आयन का परसेंटेज, अमोनियम आयन, तो टोटल अमोनियम देखो कितने अमोनियम है? 2। एक अमोनियम का वेट कितना है? 14 प्लस 4 18, 14 प्लस 4 18 एक अमोनियम का वेट है। 2 अमोनियम का 18 इंटू 2 36, इट विल बिकम 36 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100। सिमिलरली व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सल्फेट इन दिस कंपाउंड? सल्फेट का परसेंटेज कितना? टोटल सल्फेट कितना है? 1, ये पूरा सल्फेट है 1, 64 प्लस 32 96, 96 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100। तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट पूछे या परसेंटेज ऑफ आयन पूछे, इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। कॉपी कर लीजिए, सवाल को सॉल्व कीजिए।
How many atoms of helium are there in 100 AMU of helium? कहेगा 10⁻23 रे? Only 25 ना? है? हीलियम का एटॉमिक वेट कितना है? 4. मास ऑफ वन हीलियम एटम हाउ मच? 4 AMU. मास ऑफ वन हीलियम एटम 4 AMU. तो टोटल मास कितना दे रखा है? 100 AMU टोटल मास दे रखा है. तो 100 AMU अगर टोटल मास है तो कितने हीलियम एटम के टोटल मास 100 AMU के बराबर होंगे? 25. 100 divided by 4, that is 25. Only 25 is answer. कोई 10⁻23 नहीं आएगा. 100 AMU हीलियम में कितने हीलियम के एटम? तो एक हीलियम का एटम 4 AMU, तो 25 हीलियम का एटम 100 AMU. अगला सवाल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 50 ग्राम ऑफ CaCO3. सबसे पहले क्या दे रखा है? 50 ग्राम CaCO3. पूछ क्या रहा है? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 50 ग्राम ऑफ CaCO3. कैसे अप्रोच करेंगे? मास दिया है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? मोल्स निकालेंगे. कुछ भी दिया है सबसे पहले मोल्स निकालो. तो इसके 50 ग्राम ऑफ CaCO3 के मोल्स कितने हो जाएंगे? मास गिवन डिवाइडेड बाय, चूंकि ये कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर वेट. हाउ मच मॉलिक्यूलर वेट इट हैज? 100. कैल्शियम 40, कार्बन 12 और ऑक्सीजन 16 into 3 48. 48 12 60 प्लस कैल्शियम 40 100. सो हाउ मेनी मोल इट विल बिकम? हाफ मोल. अब आप डायरेक्ट कर सकते हो क्योंकि हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से सीधे बोलेंगे कि इसके 1 मोल में 1 मोल कैल्शियम, 1 मोल कार्बन और 3 मोल ऑक्सीजन. ये समझ में आ रहा सबको? या अगर एक मॉलिक्यूल इमेजिन करना पड़ा तो एक मॉलिक्यूल में 1 कैल्शियम के एटम, 1 कार्बन का एटम और 3 ऑक्सीजन का एटम. ये भी सही है. एक मॉलिक्यूल का लेके बोलो या 1 मोल का लेके बोलो. बताया था पिछले क्लास में, है कि नहीं? तो 1 मोल कितना मोल ऑक्सीजन एटम है इसमें? 3. तो हाफ मोल में कितना होगा? 3/2. सो मोल्स ऑफ O atoms, moles of O atoms will be 3 into 1/2. जिसे डाउट हो हाथ उठा के पूछ लेना. समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन एटम्स के मोल्स कितने हो गए? 3/2. मोल है, मोल को नंबर में कन्वर्ट करना है क्योंकि हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने. नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने? तो मोल मल्टीप्लाइड बाय अवोगाड्रो नंबर विल गिव यू द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम. दिस इज द आंसर. थर्ड का कितना आंसर आया? X gram of A contains Y atom, then 2x gram of B will contain how many atoms? कोई 10⁻23 नहीं, सिर्फ Y. Y ही आंसर है. Y ही आंसर है सिर्फ. A का एटॉमिक वेट 20, B का एटॉमिक वेट 40. X ग्राम A हैज Y एटम्स, ये दिया हुआ है. ये एक इंफॉर्मेशन गिवन है. X ग्राम ऑफ A हैज Y एटम्स. ठीक है. X ग्राम ऑफ A मतलब मास ऑफ A इज गिवन. व्हाट विल बी मोल्स ऑफ A? मोल्स ऑफ A, X इज द मास ऑफ A. A एलिमेंट है, डिवाइडेड बाई एटॉमिक वेट दैट इज 20. ये मोल्स निकला. मोल को नंबर में कैसे चेंज करते? इनटू अवोगाड्रो नंबर. नंबर ऑफ A एटम्स विल बी इक्वल टू x/20 इंटू Na. ये नंबर ऑफ A एटम्स आया और यही नंबर ऑफ A एटम्स दे रखा है सवाल में Y. x/20 इज द मोल्स ऑफ A. x/20 मोल है. मोल को फिर नंबर में कैसे चेंज करेंगे? अवोगाड्रो नंबर गुना कर दिए और यही हमको Y दे रखा है सवाल में. ठीक है. हमसे पूछा क्या जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है कि 2x ग्राम ऑफ B में कितने एटम्स, ये पूछा जा रहा है. तो 2x ग्राम ऑफ B तुरंत मोल में कन्वर्ट करो. 2x ग्राम ऑफ B, मोल्स ऑफ B कितना? 2x अपॉन एटॉमिक वेट ऑफ B, एंड एटॉमिक वेट ऑफ B इज 40.
सो इट विल बिकम x/20 मोल आया। नंबर ऑफ बी एटम्स, तो मोल पता चल गया, इनटू अवोगाड्रो नंबर विल गिव यू द नंबर ऑफ बी एटम्स। यही आंसर है। क्योंकि हमको पता है कि ये वैल्यू किसके बराबर है, y के बराबर है, तो ये वैल्यू फिर से ये y के बराबर ही आया, इसलिए y एटम्स ही आंसर। मोल कंसेप्ट में ये पहला टाइप का सवाल, जिसको हम लोग बोलते हैं काउंटिंग टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। काउंटिंग द नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल चार्ज, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगला सवाल, एन अवोगाड्रो नंबर आ गया, फटाफट स्पीड बढ़ाओ। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। Calculate the total number of electrons present in 1.6 gram of methane. Methane is CH4. चलिए आप बताइए कैसे सॉल्व करेंगे, आराम से बैठ के बताओ। मोल निकालेंगे, बताओ कैसे मोल निकालें। मोल्स विल बी इक्वल टू 1.6, कितना आएगा मॉलिक्यूलर वेट, 12 + 4 दैट इज 16। आ गया मोल 0.1। अब बताओ आगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। वेरी गुड, क्योंकि ये कंपाउंड है, इसका फंडामेंटल पार्टिकल क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होगा, इसलिए हम लोग सीधे निकालेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर कैसे निकलता है, 0.1 मोल था मल्टीप्लाइड बाय अवोगाड्रो नंबर। अब बताओ आगे, मॉलिक्यूल पता चल गया, आगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स कहां होंगे, एटम में, एटम कहां होगा, मॉलिक्यूल में। अब बताओ, अब एक मॉलिक्यूल इमेजिन करो, एक मॉलिक्यूल इमेजिन कर, तो एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन के एटम, 1 कार्बन का एटम और 4 हाइड्रोजन के एटम। ये होगा ना एक मॉलिक्यूल, यस और नो। और एक कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 6, और हर हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1, तो 4 हाइड्रोजन का टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। जब एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है तो इतने मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन, इंटू 10 करेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स will be equal to 0.1 into Na into 10, which is Avogadro number answer. Clear? अगला सवाल कौन सा है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन 44.8 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस। सवाल को सॉल्व करने के पहले एक चीज देख लो। पहले देखो, नोट कर लेना, सम एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, सम एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, जैसे O2, H2, Cl2, O3 एटसेट्रा। ये सब एलिमेंट्स हैं बेसिकली, लेकिन इनका एग्जिस्टेंस कैसा है, मॉलिक्यूलर फॉर्म है। समझ में आ रहा है? तो देयर फंडामेंटल पार्टिकल विल बी मॉलिक्यूल्स। है ये एलिमेंट, लेकिन इनका फंडामेंटल पार्टिकल क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल। गौर से देखो, अगर लिखा है 1 मोल ऑक्सीजन गैस, 1 मोल ऑक्सीजन गैस, it will have Avogadro number of O2 molecules
1 मोल ऑक्सीजन गैस अवोगाड्रो नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स होगा। 1 मोल हाइड्रोजन गैस अवोगाड्रो नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स होगा। 1 मोल ओजोन गैस अवोगाड्रो नंबर ऑफ O3 मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें। समझ में आ रहा है? और वही अगर लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, क्लियरली जब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स लिखा हुआ है, इट विल हैव अवोगाड्रो नंबर ऑफ O एटम्स इन इट। अंतर समझो सेंटेंस का। अगर ऑक्सीजन गैस दिया हुआ है, अवोगाड्रो नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स हमेशा, और अगर ऑक्सीजन एटम्स लिखा हुआ है तो सीधे हम लोग 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम विल कंटेन अवोगाड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ऑलवेज। Calculate the total number of oxygen atoms present in 44.8 liter of oxygen gas at STP. .8 liter of oxygen gas at STP. तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस कितना हो गया? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस कितना हो गया? 44.8 डिवाइडेड बाई 22.4, 2 मोल्स। ठीक है? ऑक्सीजन गैस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, 2 into अवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, 2 into अवोगाड्रो नंबर। अब एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन के एटम्स? 2 ऑक्सीजन के एटम्स। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन के एटम्स? देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू 2 into Na multiplied by 2, that is 4Na. आंसर। Calculate the total number of nitrogen and hydrogen atoms present in 100 liter of ammonia. चलो तुम बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कैसे निकालेंगे? 1000 लीटर। हाँ, तो पहले मोल्स ऑफ अमोनिया निकल गया। कितना? 100 डिवाइडेड बाई 22.4। फिर आगे क्या करें? बिल्कुल, इतने में इतना ही नाइट्रोजन होगा। क्या निकाले फिर अगला? हाँ, नाइट्रोजन का मोल। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकल गया 100/22.4। समझ में आ रहा है? 1 मोल अमोनिया में 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन। तो 1 मोल नाइट्रोजन है तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने हो गए? 1 into दिस। ठीक है, फिर हाँ, एटम्स पूछा। नंबर ऑफ N एटम्स कितने हो जाएंगे? 100/22.4 मल्टीप्लाइड बाई N है। करेक्ट। फिर आगे बता। ओके, सो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने? 300/22.4। सही है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितना? 300/22.4 मल्टीप्लाइड बाई N है। बैठ जाओ। क्लियर है? अगला सवाल कौन सा? अगला सवाल, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CaWO4? तुम बताओ। आंसर हमको नहीं मतलब है, मेथड यहीं पे सॉल्व करो। बताओ पहले क्या लिखें? कैसे निकालेंगे बताओ? सबसे पहले क्या निकालें? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ FeWO4 कितना आया? 56 + 184 + 64 कितना आ रहा है? 14, 8 6 14, 5 19, 20, 2 3 304। फिर आगे मोल्स ऑफ FeWO4 कितना? 569 डिवाइडेड बाई 569 ग्राम ऑफ FeWO4 दे रखा है। उसमें जितने टंगस्टन है उतना ही टंगस्टन कितना ग्राम CaWO4 में होगा? ये सवाल है।
समझ में आ रहा है? इसमें जितने टंगस्टन हैं 569 ग्राम ऑफ FeWO4 में जितना W का ग्राम है उतना ही मास W कितने ग्राम CaWO4 में होगा? आगे बता फिर। हाँ, एक एटम है। 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? स्टेटमेंट गलत है। एक मॉलिक्यूल में इतना मोल होगा। मोल्स ऑफ FeWO4 पता चल गया। एक मोल में एक मोल W होता तो इतने मोल में W के मोल्स कितने हो जाएंगे? मोल्स ऑफ W विल बी सेम 569 डिवाइडेड बाय 304। अब बता। इतने? हाँ, इतने ही मोल्स CaWO4 में भी होने चाहिए W के। हाँ, फिर? हाँ, ऐसे ही सेम। क्या देख, ये मोल्स ऑफ FeWO4 निकला, क्लियर। मोल्स ऑफ W निकल गया। यहां पर कितना है? अब इतना ही मोल ऑफ W किस में होना चाहिए? CaWO4 में होना चाहिए। तो जब हम CaWO4 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख रहे हैं तो एक मोल W एक मोल CaWO4 में होता है। 1 मोल ऑफ W इज प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ CaWO4. Therefore 569 by 304 moles of W will be present in 569 by 304 moles of CaWO4. तो जब ये मोल पता चल गया तो मास ऑफ CaWO4 कितना? मोल्स पता चल गया 569 अपॉन 304 मल्टीप्लाइड बाय मोल को मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करो। कैल्शियम 40, 184, 64। यही आंसर। Molecular weight of hemoglobin is 65,000. Hemoglobin contains 0.35% of iron by mass. Then how many iron atoms is present in 1 molecule of hemoglobin? तुम बताओ। करो। कितना आया आंसर? 4 Na। एक मॉलिक्यूल में 4 Na। क्या पूछा है सवाल वो देख। हंड्रेड % सही। कैसे करेंगे बता दिया, बिल्कुल करेक्ट बताया। मुझे हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं पता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो आयरन होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, और उस आयरन का इंडेक्स होगा, वो इंडेक्स X है। तो तुरंत हम क्या बोल सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन में X आयरन के एटम्स हैं, बोल सकते हैं ना। यही X तो हमारा आंसर हो गया। अब आयरन का परसेंटेज निकालने के लिए बोलते तो तुम क्या बोलते, कैसे निकालते? निकालते X इंटू 56 टोटल आयरन का वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100 जो कि दे रखा है 0.35। X निकालो, X आंसर सॉल्व करोगे सीधे X आएगा 4। 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेन्स 4 आयरन एटम्स। आंसर अगला सवाल क्या है? इंसुलिन कंटेन्स 3.4% सल्फर बाय मास। व्हाट विल बी द या व्हाट कैन बी द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन? इसमें क्या लॉजिक लगाएंगे? मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।
हमें पता है कि इंसुलिन का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला होगा, उससे हमको मतलब नहीं है, और इसमें सल्फर भी है, ठीक है। सल्फर का इंडेक्स कुछ n होगा, लेकिन हमसे बोला जा रहा है उसका मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकालो। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट के लिए सल्फर का नंबर को मिनिमम करेंगे, लेकिन सल्फर को हम जीरो भी नहीं कर सकते क्योंकि 3.4% सल्फर है। मिनिमम के लिए हम सल्फर का इंडेक्स या नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल क्या मान लेंगे, मिनिमम, एंड दैट मिनिमम वैल्यू इज 1। समझ में आ रहा है? अब परसेंटेज ऑफ सल्फर अगर निकालना रहता तो 32 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100, दैट इज 3.4 गिवन, गेट द मॉलिक्यूलर वेट। ये जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट आएगा। क्लियर है? मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट वाला सवाल कैसे करना है, क्लियर है? अगला सवाल कौन एक्सप्लेन करेगा? अटेम्प्ट करो। The nitrogen content in a sample of urea 42.5, ये सैंपल ऑफ यूरिया है, और इस सैंपल में परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बाय मास इज 42.5। हमसे पूछा जा रहा है परसेंटेज ऑफ प्योर यूरिया इन द सैंपल। इसी को परसेंट प्योरिटी कहते हैं। मतलब डेफिनेटली ये जो सैंपल है वो इम्प्योर है, यूरिया के साथ कुछ और भी मिला हुआ है, मान लो सैंड मिला हुआ है, तो परसेंटेज ऑफ प्योर यूरिया विल बी कॉल्ड एज परसेंट प्योरिटी ऑफ द सैंपल। तो मास ऑफ प्योर यूरिया डिवाइडेड बाई टोटल मास इंटू 100, ये निकालना है फाइनल आंसर। कैसे निकलेगा? यूरिया का मास परसेंट निकालेंगे, हाँ, वो तो प्योर यूरिया में आएगा। फिर जब भी परसेंटेज रिलेटेड सवाल हो, बहुत आराम से लेट द टोटल वेट इज 100 ग्राम, टोटल वेट ऑफ द सैंपल इज 100 ग्राम, टोटल वेट ऑफ द सैंपल इज 100 ग्राम। डेफिनेटली मास ऑफ नाइट्रोजन विल बी 42.5 ग्राम। अगर 100 ग्राम सैंपल का वेट है और परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द सैंपल 42.5% दिया, तो तुरंत बोलेंगे ना कि मास ऑफ नाइट्रोजन कितना, 42.5 ग्राम। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन 42.5 डिवाइडेड बाई 14, ये नाइट्रोजन के मोल्स निकल गए। अगर यूरिया का फॉर्मूला देखा जाए, यूरिया का फॉर्मूला देखा जाए तो 2 मोल्स ऑफ N इज प्रेजेंट इन 1 मोल यूरिया। Therefore 42.5 upon 14 moles of N will be present in 1/2 into 42.5 divided by 14, इतना मोल्स ऑफ यूरिया, इतना ही मोल यूरिया है सैंपल में। अरे नाइट्रोजन जो है वो यूरिया की वजह से ही होगा ना। 100 ग्राम सैंपल, 42.5 ग्राम नाइट्रोजन, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। 1 मोल यूरिया में 2 मोल नाइट्रोजन होता है। 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन 1 मोल यूरिया, सो दिस मेनी मोल्स विल बी प्रेजेंट इन हाउ मेनी मोल्स ऑफ यूरिया? मोल्स ऑफ यूरिया पता चल गया, मोल्स ऑफ यूरिया पता चल गया तो मास ऑफ यूरिया पता चल जाएगा। मास ऑफ यूरिया विल बी इक्वल टू
42.5 डिवाइडेड बाई 28 इंटू यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट 60 मॉलिक्यूलर वेट परसेंट है ना यार, तो परसेंट इज आउट ऑफ 100 ना। तो क्लास 7th का सवाल पूछ रहा है। 100 ग्राम मान लिए सैंपल, तो उसमें 42.5 ग्राम ही तो होगा। ये समझ में आ रहा है? और यही आंसर है। हाँ, तो वही तो बोले, यही आंसर है। क्योंकि 100 में हम जो भी निकालेंगे वो ऑटोमेटिकली परसेंट होता है यार। 100 ग्राम सैंपल में ही तो निकाल दिए ना मास ऑफ यूरिया, तो ऑटोमेटिकली यही आंसर हो गया, यही परसेंट प्योरिटी है। क्योंकि दिस डिवाइड बाई 100 इंटू 100। क्लियर? लॉज। या चलो एक और हम टाइप का छोटा सा सवाल तुमसे पूछते हैं। ऐसे भी कभी कभी सवाल पूछा जाता है। जैसे मान लो हम बोले कि 100 ग्राम ऑफ CaCO3 इज टेकन, मोल्स ऑफ CaCO3, ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3, gram atoms of oxygen, gram atoms of calcium। कभी कभी सवाल ग्राम एटम ग्राम मॉलिक्यूल में भी पूछेगा। समझ में आ रहा है? तो ग्राम मॉलिक्यूल पूछे या ग्राम एटम पूछे, ऑल ऑफ देम आर नथिंग बट मोल्स। क्लियर है ना? कंफ्यूज मत होना। मोल इज 1, ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 इज 1, ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 3। क्योंकि 100 ग्राम इज 1 मोल, 3 ग्राम एटम कैल्शियम इज 1। तो ग्राम एटम ग्राम मोल में भी अगर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे हेडिंग लिखो, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में सबसे पहला लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। Law of mass conservation, it states that the initial mass of the reactants taken, always remains constant throughout the reaction. The initial mass of the reactants taken always remains constant throughout the reaction. केमिकल रिएक्शन में जो भी हम लोग शुरू में लेते हैं उसे हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट्स, और ये रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या देता है? प्रोडक्ट्स। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन मतलब कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। खैर, हम इसको केमिकल रिएक्शन के लैंग्वेज में लिखा है कि जो मास हम लोग रिएक्टेंट का शुरू में ले लेते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए कांस्टेंट हो जाता है, चाहे रिएक्शन चल रहा हो या रिएक्शन खत्म हो चुका हो। रिएक्टेंट्स गिव प्रोडक्ट। मान ले ये एक वेसल है, इसमें हम रिएक्टेंट लिए R, रिएक्टेंट्स लिए R, और इसका वेट जो था वो W ग्राम था टोटल। रिएक्शन धीरे धीरे शुरू हुआ, धीरे धीरे प्रोडक्ट P बन रहा है, रिएक्शन अभी चल ही रहा है, तब भी ये W ग्राम ही रहेगा। क्योंकि जब रिएक्शन चल रहा होगा तो कुछ रिएक्टेंट भी होगा और कुछ प्रोडक्ट भी बन चुका होगा, तब भी ये W ग्राम रहेगा। और मान लो कि पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो गया, लेट आफ्टर द रिएक्शन ऑल रिएक्टेंट्स आर फिनिश्ड, ओनली प्रोडक्ट इज प्रेजेंट, देन ऑल्सो द मास ऑफ द वेसल विल रिमेन W. So the initial mass of the reactant taken will always remain constant throughout the reaction. जैसे मालूम तुमसे बोले कि कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, 6 ग्राम कार्बन रिएक्ट किया, 16 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट किया, रिएक्शन के बाद कुछ भी नहीं बचा, हम तुरंत बोलेंगे 22 ग्राम ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। बिना कोई केमिस्ट्री जाने, सिर्फ लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन लगा के हम कह सकते हैं कि 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ही बनेगा। क्योंकि टोटल मास शुरू में हम लिए थे 6 ग्राम और 16 ग्राम,
टोटल मास 22 लिए थे और सब अगर खत्म हो गया तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में वो मास आ ही जाएगा। समझ में आ रहा है? सिंपल। मान ले एक मेटल अल्फा ग्राम was dissolved in sulfuric acid to form metal sulfate, and this metal sulfate is beta gram. Alpha gram of a metal was dissolved in sulfuric acid and metal sulfate was formed. Beta gram of metal sulfate was formed. लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन लगाकर हम एक चीज तो जरूर बोल सकते हैं कि अल्फा ग्राम जो मेटल था वो पूरा का पूरा किस में अब मौजूद है? मेटल सल्फेट में मौजूद है। इस मेटल सल्फेट में हम बोल सकते हैं कि मास ऑफ मेटल विल बी अल्फा ग्राम एंड मास ऑफ सल्फेट विल बी, मास ऑफ सल्फेट ओनली विल बी बीटा माइनस ऑफ अल्फा ग्राम। मास कंजर्वेशन। दूसरा लॉ लिखो, लॉ ऑफ डेफिनेट कॉम्पोजिशन गिवन बाय प्राउस्ट। है तो बहुत ही सिंपल चीज, पहले भी पढ़े हुए होंगे क्लास 10th में, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल में पूछा जा सकता है, सिंपल एप्लीकेशन दिया जा सकता है। लॉ ऑफ डेफिनेट कॉम्पोजिशन, लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। इट स्टेट्स दैट, फटाफट लिखो ये सब छोटे छोटे चीजें। इट स्टेट्स दैट द केमिकल कंपाउंड ऑलवेज हैव, it states that the chemical compounds always have, it states that the chemical compound always have definite composition irrespective of definite composition. Chemical compounds always have definite composition irrespective of the source, irrespective of the source from which it is prepared, irrespective of the source, irrespective of the source from which it is prepared। बहुत ही सिंपल सा ये लॉ है कि मान लो रिएक्शन 1, रिएक्शन 2, रिएक्शन 3, रिएक्शन 4 चारों ने वाटर ही दिया, तो वाटर का कॉम्पोजिशन किसी भी सोर्स से आए उसका कॉम्पोजिशन हमेशा फिक्स्ड होगा। It will contain 2 gram of hydrogen and 16 gram of the oxygen. The ratio between hydrogen and oxygen will be always 1:8, that is fixed. This will never change. Obvious सी बात है, केमिकल कंपाउंड जब तक सेम है तब तक कॉम्पोजिशन भी क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। चाहे वो वाटर या कोई भी केमिकल कंपाउंड किसी भी सोर्स से बनाया जा रहा हो। कार्बोनेट को एसिड में डाल दो, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। कार्बन को ऑक्सीजन में बर्न कर दो, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। जब जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का कॉम्पोजिशन क्या रहेगा? डेफिनेट। लॉ ऑफ डेफिनेट कॉम्पोजिशन। तीसरा लॉ लिखिए, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन गिवन बाय डाल्टन्स। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, law of multiple proportion given by Daltons, law of multiple proportion given by Daltons। ये जितने लॉ हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन है, जो कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बहुत हेल्प करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। बाकी तो जस्ट इंफॉर्मेशन है, नोट करो। इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन्स, if two elements combines to form two different compound, if two elements combines to form two different compound, then the different masses of the one element, then the different masses of one element which combines with the fixed mass of the other, then the different masses of the one element
which combines with the fixed mass of the other always bears a simple ratio, always bears the simple ratio, always bears the simple ratio. Simple ratio मतलब 1:2, 1:3, 2:1, 2:3. कभी भी रेशियो ऐसा नहीं आएगा कि 1.139:2.278. ये सिंपल रेशियो नहीं है. सिंपल रेशियो मतलब सिंपल इंटीग्रल रेशियो. जैसे मान लो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करता है दो तरीके से. इट कैन ऑल्सो फॉर्म NO, इट कैन ऑल्सो फॉर्म N2O. लॉ कहता है कि अलग अलग मास का एक एलिमेंट जो फिक्स्ड मास के दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करे वो हमेशा सिंपल रेशियो में एग्जिस्ट करता, सिंपल रेशियो बियर करता. जैसे यहां पर 14 ग्राम क्या था नाइट्रोजन और साथ में क्या था 16 ग्राम ऑक्सीजन, लेकिन यहां पर क्या है 28 ग्राम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कितना है 16 ग्राम ऑक्सीजन. नाउ दिस इज द फिक्स्ड मास ऑफ द वन एलिमेंट. The different masses of the one element which combines with the fixed mass of the other always bears the simple ratio. तो 14 और 28 का रेशियो कितना आएगा 1:2. दिस इज सिंपल रेशियो. 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ एक कंपाउंड में नाइट्रोजन जो आया वो 14 ग्राम आया. 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ही दूसरे कंपाउंड में नाइट्रोजन आया वो 28 ग्राम आया. ये लॉ ये कहता है कि इंडेक्स कभी भी डेसिमल नंबर नहीं होता. इनडायरेक्टली यही कह रहा है ना. अगर ऑक्सीजन के साथ जितने भी नाइट्रोजन आए वो सब इंटीग्रल नंबर में आएगा, वो डेसिमल नंबर में नहीं आएगा. हम लोग आगे चल के सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे Fe 0.93O भी होता है. That is called non-stoichiometric compound. We are reading stoichiometric compound. Clear? कॉपी करो, सवाल एक लिखो, छोटा सा एप्लीकेशन लिखो इसके ऊपर. 2 oxides of sulfur contains 50% and 40% sulfur by mass. 2 oxides of sulfur contains 50% and 40% sulfur by mass. Prove that the given information is in accordance to 2 oxides of sulfur contains 50% and 40% sulfur by mass. 50% and 40% of sulfur by mass. Prove that the given information is in accordance to law of multiple proportion. Law of multiple proportion. कितना आया रेशियो सिंपल है 3:2 है कि नहीं. 3:2 आया नहीं आया. बहुत सिंपल सा चीज है. पहला ऑक्साइड 1 में अगर 50 ग्राम सल्फर है तो 50 ग्राम ऑक्सीजन होगा. 50% सल्फर है ना. लेट 100 ग्राम 50 and 40 50 ग्राम सल्फर है तो ऑब्वियसली 50 ग्राम क्या होगा ऑक्सीजन होगा. और दूसरे ऑक्साइड में 40 ग्राम सल्फर है तो 60 ग्राम ऑक्सीजन होगा.
अब इसी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल से हमको रेशियो सिंपल दिखाना है। ठीक है, पहले में बोलेंगे 50 ग्राम इज विथ 50 ग्राम, या 1 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कितना होगा 1 ग्राम सल्फर पहले में। दूसरे में बोलेंगे 60 के साथ कितना है 40, तो दूसरे में 1 ग्राम के साथ कितना होगा 40/60 होगा कि नहीं, दैट इज 2/3 ग्राम सल्फर। ऑक्सीजन का मास फिक्स कर दिए, फिक्स मास ऑक्सीजन के साथ जो मास सल्फर कंबाइन कर रहा है वो रेशियो क्या होगा सिंपल 1/2/3, दैट विल बी 3:2। सो दिस लॉ वाज गिवन बाय डाल्टन। आखिरी लॉ, द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, the law of reciprocal proportion given by Richter, R-I-C-H-T-E-R, law of reciprocal proportion, law of reciprocal proportion given by Richter, R-I-C-H-T-E-R. Note karo, if three elements A, B and C, if three elements A, B and C forms three compounds AB, BC, CA, तीन एलिमेंट ए बी सी अगर तीन कंपाउंड बनाता है ए बी बी सी सी ए, देन द रेशियो ऑफ ए एंड बी which combines with fixed mass of C then the ratio of A and B which combines with fixed mass of C is either same or a simple multiple of the ratio in which A and B combines with each other. In which A and B combines with each other. In which A and B combines with each other. समझो इस लॉ को। C का फिक्स्ड मास से A और B जो कंबाइन करता है वो A और B का रेशियो, और इस A और B का रेशियो या तो सेम होता है या सिंपल मल्टीपल होता है। जैसे हम एग्जांपल लिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन हाइड्रोजन कैन कंबाइन टू फॉर्म मीथेन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कैन कंबाइन टू फॉर्म वाटर, एंड कार्बन ऑक्सीजन कैन कंबाइन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, मीथेन में हम लोग देख रहे हैं 12 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम क्या हाइड्रोजन। वाटर में देख रहे हैं हम लोग 2 ग्राम हाइड्रोजन एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, 2 ग्राम हाइड्रोजन फिक्स किए, उसके साथ 16 ग्राम क्या था ऑक्सीजन। यहां भी 2 ग्राम हाइड्रोजन फिक्स करेंगे तो 4 के साथ 12 है, तो 2 के साथ कितना होगा 2 ग्राम के साथ कितना होगा 6 ग्राम कार्बन होगा। तो 2 ग्राम ऑक्सीजन को हम 2 ग्राम हाइड्रोजन को अगर हम फिक्स कर दिए तो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना आ रहा है 6/16 आ रहा है। कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो 6/16 आया। 6/16 इज नथिंग बट 3/8 यहां पर रेशियो आया। अब हम कार्बन ऑक्सीजन का देखें। कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है, 12 ग्राम कार्बन है और 32 ग्राम ऑक्सीजन है। रेशियो इज व्हाट 12/32, 4/3/4/8। The ratio will be same. Law of reciprocal proportion clear है?
हाइड्रोजन के फिक्स्ड मास के साथ जो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो था, वही कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो आपको कार्बन डाइऑक्साइड में भी मिल रहा है। अब हेडिंग लिखो स्टोइकियोमेट्री। केमिकल रिएक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। कितना मास हम लें रिएक्टेंट का और कितना मास प्रोडक्ट बनेगा। अगर प्रोडक्ट का मास दिया हुआ है तो कितना मास रिएक्टेंट, माने मास रिलेटेड क्वेश्चंस, कितना मास रिएक्टेंट का लिया जाए ताकि इतना मास बन जाए प्रोडक्ट का। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, मास रिलेटेड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शन। स्टोइकियोमेट्री शुरू करने के पहले दो बेसिक लॉ जानना जरूरी है। पहला लॉ लिखिए, गे-लुसक्स लॉ। गे-लुसक्स लॉ, it states that any chemical reaction, any gaseous chemical reaction always happens in a fixed simple volume ratio. In a fixed simple volume ratio. कोई भी गैसियस रिएक्शन एक सिंपल वॉल्यूम रेशियो में ही होता है और उस रिएक्शन के लिए ये रेशियो क्या होता है? फिक्स्ड। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लैब में लिया गया और हम लोग कोशिश किए इससे अमोनिया बनाने का, NH3 बनाने का। नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बनाता है। तो हम लोग हमेशा ये पाते हैं कि 1 लीटर नाइट्रोजन जब हम लोग लेते हैं तो उसको 3 लीटर हाइड्रोजन की आवश्यकता होती कंप्लीट रिएक्शन के लिए। 1 लीटर की आवश्यकता कितनी है? 3 लीटर। 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन ऑलवेज रिएक्ट्स विथ 3 लीटर ऑफ द हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 लीटर ऑफ द अमोनिया। ये 1:3:2 जो है, ये वॉल्यूम रेशियो इस अमोनिया के बनने का प्रोसेस के लिए फिक्स्ड है, ये कभी चेंज नहीं करेगा। तो शुरू में गे-लुसक्स लॉ हर गैसियस रिएक्शन के लिए एक लॉ बना दिया कि कोई भी गैसियस रिएक्शन हमेशा सिंपल फिक्स्ड वॉल्यूम रेशियो में ही होगा और वो रेशियो उस रिएक्शन के लिए हमेशा फिक्स्ड होगा। हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ आयोडीन गैस टू फॉर्म HI गैस। हमेशा 1 लीटर के साथ रिएक्ट करके 2 लीटर देता है। इस रिएक्शन का रेशियो 1:1:2 फिक्स्ड है। हाँ, अभी हम आएंगे। हम नहीं जानते बैलेंसिंग। आई डोंट नो एनीथिंग। हम बोले ना कि हम पढ़ा कैसे रहे। सब चीज जानो, उसके बाद समझोगे क्या कोफिशिएंट है। पहले लॉ आया, गे-लुसक्स लॉ, विच गेव द कंसेप्ट ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम रेशियो, और ये रेशियो हमेशा फिक्स्ड होता है। अगला लॉ लिखिए एग्जाम्पल लिखने के बाद। अगला लॉ लिखो, अवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। Avogadro's hypothesis. At the same condition of temperature and pressure. Avogadro hypothesis कहता है, at the same condition of temperature and pressure, equal volume of any ideal gases. At the same condition of temperature and pressure, equal volume of any ideal gases always contains equal number of molecules. Equal volume of any ideal gases
ऑलवेज कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे नाइट्रोजन हो या हाइड्रोजन हो या SO3 हो या अमोनिया हो, कोई भी गैस हो, सबको अगर सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे रखा गया है और इनके इक्वल वॉल्यूम निकाले गए, लेट V वॉल्यूम वॉज टेकन आउट ईच एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। पहले में अगर N मॉलिक्यूल्स अगर आया तो हम बिना देखे बोलेंगे सब में N ही आएगा। अवोगाड्रो हाइपोथेसिस ने यह लॉ दिया कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी आइडियल गैस एट द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑलवेज हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर V में अगर N है तो 2V में कितना होगा? N प्लस N 2N। 3V में कितना होगा? 3 बार इनको जोड़ दो 3N। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो अब इन दोनों लॉ को मिला के N2 प्लस H2 गिविंग NH3, देखा हम बैलेंस नहीं लिख रहे। गेल-लुसैक्स लॉ बोला कि V लीटर नाइट्रोजन will always react with 3V liter of hydrogen to give 2V liter of ammonia. This ratio was fixed by Gay-Lussac's law. अब हम इसमें एवोगाड्रो हाइपोथेसिस अगर लगा दें कि V लीटर में अगर N मॉलिक्यूल्स है तो 3V लीटर में 3N मॉलिक्यूल्स होगा और ये आपस में रिएक्ट करके क्या दे देगा? 2N मॉलिक्यूल्स। तो ध्यान रखना, एटम्स आर कंजर्व्ड बट मॉलिक्यूल्स का नंबर इज नेवर कंजर्व्ड, है कि नहीं? हम अगर 5N 4N मॉलिक्यूल्स लिए और मेरे को 2N मॉलिक्यूल ही मिल रहा है तो मॉलिक्यूल का नंबर कंजर्व थोड़ी होता है, एटम्स का नंबर जरूर कंजर्व होता है। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये भी ट्रू हो गया एवोगाड्रो हाइपोथेसिस से। दैट मीन्स कि अगर वॉल्यूम रेशियो 1:3:2 अगर फिक्स्ड है तो ये 1:3:2 मॉलिक्यूल रेशियो भी होगा। ये 1:3:2 मॉलिक्यूल रेशियो भी होगा। ये N मॉलिक्यूल हमेशा 3N मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके 2N मॉलिक्यूल्स देता है। या हम लिख सकते हैं अवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विल रिएक्ट विथ 3 into अवोगाड्रो नंबर टू गिव 2 into अवोगाड्रो नंबर। ये भी ट्रू है। और अगर ये ट्रू है तो 1 मोल विल ऑलवेज रिएक्ट विथ 3 मोल्स टू गिव 2 मोल्स। दैट मीन्स 1:3:2 इसका मोल रेशियो भी फिक्स्ड है। रिमेंबर, मोल रेशियो, इट इज नॉट अ मास रेशियो। अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे।